હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ, વેલકમ બેક ટુ આર્યન ક્લાસીસ. આર્યન ક્લાસીસમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ચલો મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે ધોરણ 11માં વિષય હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ, જે વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 અને પાટણ જિલ્લા શાળા પરીક્ષા સમિતિનું પેપર છે. અને તારીખ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે તારીખ 9/4/2025 એટલે કે બુધવાર આજનું લેટેસ્ટ પેપર છે. તો મારા વાલાઓ, મારા કલેજાઓ, તમે બધા પેપર આપીને આવ્યા હશો તો તમારું પેપર કેવું ગયું છે? જે પાટણ જિલ્લાના મારા વિદ્યાર્થીઓ જે મને ફોલો કરે છે એ દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો કે તમારું પેપર કેવું ગયું છે. ચલો આગળ વધવું છે ફટાફટ વિભાગ એ ઉપર. તો વિભાગ એની અંદર તમને વિકલ્પો આપેલા છે અને તમારે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને જવાબ લખવાનો છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? तो जवाब આપણો આવશે, जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है. એટલે એવું કહેવા માંગે છે કયા લોકોનું જ્ઞાન એ વ્યર્થ એટલે ફોગટ છે. તો જે લોકો આત્મજ્ઞાન છોડી અને જે પથ્થરની પૂજા કરતા હોય તો એમનું જ્ઞાન એ કેવું છે? વ્યર્થ છે, એવું કહેવા માંગે છે एक्चुअली. चलो प्रश्न नंबर 2, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? तो संघर्ष करना चाहिए. क्या? संघर्ष करना चाहिए. અત્યારે તો एक्चुअली સત્યનો જમાનો જ નથી રહ્યો કોઈ જગ્યાએ. झूठ तो हम बोलते नहीं हैं. चलो, रहीम जिह्वा की तुलना किससे करता है? तो रहीम जिह्वा की तुलना पागल से करता है. किससे करता है? पागल से करता है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. चलो प्रश्न नंबर 4 है, हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना चाहिए? तो दूसरों के लिए तन मन. क्या? तन मन धन, तन मन. चलो प्रश्न नंबर 5, बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? तो झुंड में. कैसे? झुंड में चलाते हैं. चलो प्रश्न नंबर 6, कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया? तो कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या घर जला दिया था? क्या? घर जला दिया था. चलो 7માં કીધું છે કે जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? तो जीत की खुशी स्वयं के साथ मनानी चाहिए. જ્યારે આપણે જીતી જઈએ તો પોતાની જાતે જ આપણે ખુશી મનાવી જોઈએ. કારણ કે આપણે જીતી જઈએ તો કોકને તો ન જ ગમે ને. હા, આપણા પાડોશીને થોડું ગમતું હશે આપણે કોઈ વાતે જીતી જઈએ તો પછી પોતાની જાત સાથે ખુશી મનાવી લેવાની. चलो 8માં કીધું છે, हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगा? तो हर इंसान को समानता मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगा. चलो આગળ વધવું છે જોડકા ઉપર. મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, તમે ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થીઓ છો, આવતી સાલ તમે ધોરણ 12માં આવવાના છો. તો દરેક વિદ્યાર્થીને ખાસ જણાવવાનું, પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખી લેજો. ધોરણ 12ની અંદર તમને આપણી ચેનલ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. ચલો તમારે અહીંયા જોડકા બનાવવાના છે. તો 9માં કીધું છે ગઝલ. તો ગઝલમાં જવાબ આવશે વિજય તિવારી. પછી 10માં કીધું છે ડંકા. તો ડંકામાં આવશે સુબ્રમણ ભારતી. જોડકા જોડેલા જ છે. ચલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે. તો અહીંયા કીધું છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક વાક્ય મેં લીખીએ. પ્રશ્નના ઉત્તર તમારે એક વાક્યમાં લખવાના છે. એમાં પ્રશ્ન નંબર 11માં કીધું છે बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर आज भी दीदी के घरेलू नुस्खे याद आते हैं. चलो 12માં કીધું છે કે परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? तो परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? अत्यंत डरावना है. कैसा है? अत्यंत डरावना है. અને આ પરશુરામ કોણ હતા તમને ખબર હોય તો મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો પાછા હો. ચલો 13માં કીધું છે કે कलम छीन जाने पर कवि क्या करेगा? तो कलम छीन जाने पर कवि अपना सर्वस्व न्योछावर करके लोगों में चेतना जगाएगा. ये जवाब આપેલો છે, મેં લખેલું જ છે. चलो प्रश्न नंबर 14 છે, स्त्रियों की राह किसने रोक ली है? तो स्त्रियों को भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, पर किसी मूर्ख व्यक्ति ने उनके विकास की राह रोक ली है. कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसने उनके विकास की राह रोक ली है. चलो ત્યાંથી આગળ વધું તો તમને અહીંયા 2-3 વાક્ય મેં ઉત્તર, એટલે અહીંયા પ્રશ્નો આપેલા છે એના તમારે 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે. અને નીચે તમને સવિસ્તાર ઉત્તર પૂછેલા છે જે તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુક ગાઈડમાં જોઈ લેજો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધવું છે. વિભાગ બી ઉપર જવું છે. વિભાગ બીની અંદર તમારે ઉત્તર વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખવાનો છે.
એમાં પ્રશ્ન નંબર આપણો 21 છે। अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने खाली जगह को घुमा रहे हैं। હવે આ જે પ્રશ્નનો જવાબ આવે છે એ ઓપ્શનમાં ક્યાંય નથી, પણ આનો જવાબ આવે છે यर्वदा चक्र। क्या चक्र, कैसा चक्र, क्या घुमा रहे हैं? यर्वदा चक्र घुमा रहे हैं। चलो 22 कीधुं छे हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो हृदय की चोट विस्मृति से ठीक होती है। किससे? विस्मृति से। चलो 23 कीधुं छे शुं कीधुं छे अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? तो ते आपणो जवाब आवशे बहादुर। नदी का नाम है बहादुर। बहादुर नहीं हो, बहादुर है। हाँ एम सोनी मोनी पहला जो अने पछी आगळ वात। चलो 24 कीधुं छे वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में खाली जगह रहे थे। क्या कर रहे थे? तो चमचमा रहे थे। क्या कर रहे थे? चमचमा रहे थे। चलो 25 कीधुं छे कल्पना शक्ति को खाली जगह के नाम से पुकारते हैं। तो कल्पना शक्ति को किसके नाम से पुकारते हैं? तो प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। किसे? प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। चलो 26 कीधुं छे कि मुन्नी तोते से खाली जगह गिराने को कहती है। तो मुन्नी तोते से क्या गिराने के बारे में कहती है? तो आम। हाँ મને છે ને એકચ્યુઅલી બહુ ભાવે છે કેરી। અત્યારે તો હવે સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે ઉનાળાની, એટલે મજો પડી જાય। તમને કેરી ભાવતી હોય ને તો મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો હો। हाँ चलो 27 कीधुं छे कि गाँव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो गाँव में कुल 8 पंचायतें थी। चलो 28 कीधुं छे लेखक ने बाजरा को क्या समझा था? तो लेखक ने बाजरा को आदमी समझा था। क्या? आदमी समझा था। चलो त्याथी आगळ वधुं छे तो जोड़ बनाववानी छे। एमां 29 कीधुं छे दुख। तो दुखनुं थशे यशपाल। अने पहली चूक। तो पहली चूक थशे श्री लाल शुक्ल। शुं थशे? श्री लाल शुक्ल। ओके चलो आगळ वधुं छे तो उत्तर तमारे एक वाक्यमां लखवाना छे। एमां 31 कीधुं छे कि रेखा गणित के प्रवर्तक कौन है? तो रेखा गणित के प्रवर्तक यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड। चलो 32 कीधुं छे कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था? तो रात के अंधेरों में लोगों के हाथ में मशाल था। क्या था? मशाल। चलो प्रश्न नंबर 33 लेखक को बीज और खाद खरीदने कहाँ जाना पड़ता था? तो शहर जाना पड़ता था। कहाँ? शहर। अत्यारे तो गामडानी अंदर घणी बधी सुविधा आवी गई छे एक्चुअली, पण तो बी शहरमां बधाने जवुं पड़े। चलो नींद में लेखक के मुँह पर क्या गिरा? तो नींद में लेखक के मुंह पर मैना पक्षी का एक बदसूरत चूजा गिरा था। ओके चलो आगळ वधवुं छे तो अहींया तमने 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए अने सविस्तर उत्तर। तो आ जे प्रश्नों आपेला छे तमे टेक्स्ट बुक में टेली करी लेजो। चलो आगळ वधुं तो आपणे विभाग सी पर जवुं छे। विभाग सी नी अंदर तमने खबर छे कि तमने जे सूचना आपी छे ए प्रमाणे तमारे जवाब आपवाना छे। पहला तमने समानार्थी पूछ्यु छे। समानार्थी में 41 में कीधुं छे साजिश। तो साजिशनो मतलब थशे षड्यंत्र। कोईना विरुद्ध तमे जे षड्यंत्र करो तो एने हिंदी में साजिश कहेवाय। सीरियलो जोता हशो तो खबर हशे। चलो 42 में कीधुं छे अहींया तमने विलोम शब्द એટલે વિરોધાર્થી શબ્દ આપવાનો છે ઉન્નતિ। ઉન્નતિનું વિરોધી થશે અવનતિ। શું થશે? અવનતિ। ચલો પછી અહીંયા તમારે ઉપસર્ગ અલગ કરવાનું છે હાર્દિક। तो हार्दिकનો उपसर्ग अलग करिए तो हा थशे। पण आटलू एक बार प्लीज थोड़ू टेली करी लेजो। मैं जवाब तो तमने आप्यो छे। चलो पछी तमारे प्रत्यय अलग करवानो छे। तो अहींया कीधुं छे वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकनो प्रत्यय अलग करो तो शुं थशे? इक थशे। इक वैज्ञानिक बोलाय छे इक। चलो त्याथी आगळ वधवुं छे तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो मोहन की कमीज सोहन से अच्छी है। तो आ मोहन की कमीज एवं नहीं थाय। मोहन की खमीज सोहन की खमीज से अच्छी है। हवे एनाथी तो अच्छी होय ज नहीं। चलो पछी तमने मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये 2 मुहावरा आपेला छे। प्लीज तमे आनो जवाब मने कॉमेंटनी अंदर जणावजो। मने मुहावरा मळ्या नथी एटला माटे। चलो पछी त्याथी आगळ वधवुं छे तो तमने अहींया कीधुं छे कि कहावत का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अहींया तमने कहावत आपेली छे सावन सुखे न भादो भरे। तो सावन सुखे न भादो भरे एनो कहेवतनो अर्थ थशे अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना।
શું કીધું છે? अपरिवर्तित रहना। अच्छे बुरे समय में एक सा अपरिवर्तित रहना। चलो त्याथी आगळ वधू तो तमारे प्रश्नों उत्तर लखवाना छे। एमां प्रश्न नंबर 49 में कीधुं छे कि हिंदी किन किन राज्यों की मुख्य राजभाषा है। मतलब कि हिंदी कया राज्यों की राज्य भाषा है? तो एक तो उत्तराखंड है, पछी हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, पछी बिहार, एमपी एटले मध्य प्रदेश, यूपी एटले उत्तर प्रदेश, पछी छत्तीसगढ़। तो आ बधा जे राज्यों है आ राज्योनी मुख्य राज्य भाषा हिंदी है। तो घणा बधा राज्यों है। आई होप तमे लखीने आव्या हशो अने जरा कॉमेंट बीजी सारी एवी करतुं रहेवानुं। तमने जरा मारो विडियो गमतो होय, हेल्पफुल थतो होय, तमने मारी चेनल में भणवानी मजा आवती होय तो विडियो पे लाइक कर देना। ओके चलो 50 में कीधुं छे कि निमंत्रण पत्र के प्रकार बताइए। कोईने निमंत्रण आपवुं होय तो निमंत्रण आपवाना प्रकार केटला छे? तो 3 छे। कया कया? एक तो व्यक्तिगत, तमे कोईने व्यक्तिगत निमंत्रण पत्र आपता होय तो एने व्यक्तिगत कहेवाय। पछी घरे लग्न होय तो लग्न में आपणा फ्रेंड ने आपणे आमंत्रण आपीए तो एना सहकुटुंब साथे आपीए तो पारिवारिक पत्र। पछी छेल्ले लास्ट में आवशे सार्वजनिक अने सामाजिक पत्र। तो 3 प्रकार छे, एक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक अने सामाजिक, आ बंने साथे छे। तो 3 प्रकार छे निमंत्रण पत्रना। हालो त्याथी आगळ वधू तो आपणा विभाग डी नी शरूआत थाय छे। विभाग डी नी अंदर तमने अहींया शुं कीधुं छे? संदर्भ लखवानो छे। अहींया आपेली पंक्ति छे एनो। त्याथी आगळ वधीए तो तमने एक सरस मजानो फकरो आपेलो छे ने एना उपरथी तमारे साचा जवाबो शोधीने लखवाना छे। तो प्रश्न नंबर 52 छे, एमां विद्यार्थी के लिए उसका आदर्श कौन होता है? तो अहींया मैं टिक करेलो छे। जवाब विद्यार्थी के लिए शिक्षक ही उसका आदर्श होता है आपेलो छे। प्रश्न तमारे जवाब कॉपी पेस्ट करवानो हतो। आटलू बधुं सरस मजानुं आपेलुं होय छे ने तो अमुकने एवुं लागे मने छे ने एक्चुअली हिंदी हार्ड पड़ी छे। सोनी मनी तो अहींया जोतो खरा जवाब अंदर आपेला छे, तारे जोईने शोधीने लखवाना छे तोय घणा बाकी मूकीने आवता होय छे। बोलो चलो, शिक्षक विद्यार्थी की ओर व्यक्तिगत रूप से क्यों ध्यान नहीं दे पाता? तो भीड़ भरी कक्षाओं में शिक्षक के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी समस्याओं और व्यक्तिगत रूप से जान सके। हवे घणी भीड़ भाड़ वधी आखो क्लास होय, आखा क्लासनी अंदर 70 छोकरा होय तो शिक्षक थोड़ुं पर्सनल कोईना उपर ध्यान आपी शके एटला माटे। चलो 54 में कीधुं छे वर्तमान शिक्षा की क्या क्षति है? तो वर्तमान शिक्षा में नौकरशाही बाबू तैयार करती है एटला माटे अहींया शुं कीधुं छे? वर्तमान की शिक्षानी आ क्षति छे। चलो पछी इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो वर्तमान की शिक्षा एवं तमे आने शीर्षक आपी शको छो, वर्तमान की शिक्षा। ओहो अहींया विभाग डी छे ने अहींया विभाग ई छे पण लखवामां मिस्टेक थई छे। कई वांधो नहीं, अहींया आपणो विभाग ई छे अने ईनी अंदर तमने शुं आपेलुं छे? तो अहींया तमारे कहानी लखवानी छे अने तेने उचित शीर्षक आपवानुं छे। चलो पछी तमारे निबंध लखवानो छे। तो 3 निबंध आपेला छे। एक तो वृक्षारोपण छे, पछी सिनेमा से लाभ हानि अने घायल सैनिक की आत्मकथा। आमांथी तमने मजा आवे ने तमने मजो पड़े एवो तमारे निबंध लखवानो छे। राइट ओके। तो मारा वालाओ, मारा कलेजाओ, अहींया आपणुं पेपर सोल्यूशन पूरुं थाय छे। हजू अवनवा विडियो हूँ तमने प्रोवाइड करती रहीश एटले प्लीज जरा चेनल ने सब्सक्राइब करीने राखी लेजो। चलो मळीशुं नेक्स्ट विडियो में। त्यां सुधी जोता रहेशो आर्यन क्लासेस।